नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। माई सेल्फ जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। Students, today we will discuss on session topic is directive principles of state policy in the Indian Constitution, type or classification. The directive principles of state policy contained in part 4th, article 36 to 51 of the Indian Constitution. Type classification. The directive principles may be classified into three broad categories. Generally, first, socialistic, second, Gandhian, and third, liberal intellectual. First, socialistic directives. In this principle among this category of directives are securing securing welfare of the people, article 38. Second, securing proper distribution of material resources of the community as to best subserve the common good, equal pay for equal work, protection of childhood and youth against exploitation, etc. Article 39. And third, securing right to work, education, etc. Article 41. And fourth is securing just and human conditions of work and maternity relief, article 42, etc. Second, Gandhian directives. Such directives are spread or several arts principles among such directives are: first, to organize village panchayats, article 40. Second, to secure living way, decent standard of life, and to promote cottage industries, article 43. Third is to provide free and compulsory education to all children up to 14 years of age, article 45. And D or fourth is to promote economic and educational interest of the weaker sections of the people, particularly the scheduled caste and scheduled tribe. And next is to enforce provision of intoxicating drinks and cow slaughter, and to organize agriculture and animal husbandry on scientific lines, article 46 to 48. And third is liberal intellectual directives. Principal among such directives are: first, to secure uniform civil code throughout the country, article 44. Second is to separate the judiciary from the executive, article 50. And next, third is to protect monuments of historic and national importance. And fourth is to promote international peace and security.
On the whole, Part 4 contains a formidable list of directives given to the executive and the legislatures to follow in using orders or making laws. These directives make India a plastic state. The directives may be used by any party with any ideology. In fact, the directive principles are codified various versions of democratic socialist order as conceived by Nehru with an admixture of Gandhian thought. Part 4 of the Constitution does not form an operative part of the Constitution. The directives are non-justiciable in character. The courts cannot compel the governments to enforce the directives, but there is no judicial sanction behind the directives. There are certainly political sanctions. Article 37 make the directives fundamental in the governments of the country and in making laws. Hence, the government cannot totally ignore them for fear of adverse people's reaction. The non-justiciable of Part 4 has exposed the directives to present criticism. Jennings calls them pious aspirations and heavens socialism without socialism, where characterize them as paragraphs of generalistics. Yet many scholars appreciate the value of the directives. Bien Raw regards them as moral precepts with an educative value. Ambedkar considered them as powerful instruments for the transformation of India from a political democracy into an economic democracy. The directive principles, according to Granville Austin, are positive obligations to find a middle way between individual liberty and public goods. This session prepared by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University. लेट्स इन हिंदी. देखिए, आज का जो सेशन है, टॉपिक है, वो है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व या सिद्धांत प्रकार, जिसमें हम बात करेंगे या वर्गीकरण. भाग 4 में राज्य के नीतिशक तत्वों की बात बताई गई है और इस भाग 4 में जो अनुच्छेद है 36 से 51, उसमें इस वर्गीकरण से संबंधित बातों को बताया गया है और एक विशेष भाग है. ठीक है, एक चमत्कारी भाग है जो कि भारत में ही माना जाता है. देखिए, प्रकार जो हैं, प्रकार में हम या वर्गीकरण में हम इसको 3 भागों में देख सकते हैं. जो नीतिशक तत्व हैं उसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं या 3 प्रकार के हैं. पहला है समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा लिबरल बौद्धिक. देखिए, पहला जो समाजवादी निर्देश है उसमें इस श्रेणी के निर्देशकों में प्रमुख लोगों का कल्याण, अनुच्छेद 38 और पहला. दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों के समुचित वितरण के लिए सबसे अच्छा के रूप में सामान्य इच्छा, समान काम के लिए समान वेतन, सुरक्षा प्रदान करना, बचपन और जो शोषण है
उसके खिलाफ इत्यादि। ये अनुच्छेद 39 में है, 39। और अगला तीसरा है कार्य शिक्षा आदि का अधिकार, अनुच्छेद इनमें भी बताया गया है। और जो चौथा है वो काम और मातृत्व राहत आदि की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करना। तो ये बातें जो हैं वो सामाजिक निर्देश में बताया गया है। समाज कल्याण से संबंधित जो बातें हैं वो इसमें बताई गई हैं। दूसरा है गांधीवादी निर्देश। ऐसे निर्देशों के बीच प्रमुख है ग्राम पंचायतों, अनुच्छेद 40 के बारे में बताया गया है। बी या सेकंड, इसको व्यवस्थित करने के लिए जीवित मजदूरी, जीवन के सभ्य मानक और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद, ये सब चीज़ें 43 में बताई गई हैं। अगला जो है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में बताया गया है। और चौथा जो पॉइंट है इसका या डी जो है उसमें लोगों के कमज़ोर वर्ग, विशेष रूप से SC ST उनके बारे में। और अगला है नशे को रोकने के लिए आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने के लिए पेय और गोवध और कृषि तथा पशुपालन को वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करना, अनुच्छेद 46 से 48 में बताया गया है। ये तो हमने दो प्रकार की बात करी। अब तीसरा जो प्रकार है वो है उदार बौद्धिक निर्देश। देखिए सबसे पहला जो इसमें देश भर में समान नागरिक संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 में बताई गई है, इसको सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है कि ये बनी रहे समान नागरिकता। और जो दूसरा है या बी है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कहा गया है या व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद जो कि 50 में इसके बारे में बताया गया है। तीसरा जो इसका पॉइंट है या सी जो है वो ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा के लिए बात बताई गई है। और चौथा जो है या डी जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई। ठीक है, कुल मिलाकर भाग 4 में कार्यपालिका और व्यवस्थापिकाओं को दिए गए निर्देश और कानूनों को बनाने के लिए दिए गए निर्देशों की एक विशेष सूची बताई गई है। ये निर्देश भारत को एक प्लास्टिक राज्य बनाते हैं। ठीक है, कई बार आ जाता है कि प्लास्टिक राज्य बनाने वाले कौन हैं, ये किस में प्रोविज़न किया गया है, तो आप निर्देशक तत्वों में इसको बता सकते हैं। निर्देशों का उपयोग किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी विचारधारा के साथ किया जा सकता है। वास्तव में निर्देशक सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के संहिताबद्ध संस्करण, जैसा कि नेहरू द्वारा गांधीवादी विचार के मामले में देखा जा सकता है। संविधान का भाग 4, संविधान का एक विशेष भाग, ये हम जानते ही हैं। निर्देश चरित्र में गैर न्याय संगत है। अदालतें सरकारों को निर्देश लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर निर्देशों के पीछे कोई न्यायिक मंजूरी नहीं है तो निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिबंध होगा। अनुच्छेद 37 निर्देश बताते हैं कि देश के शासन में मौलिक और कानून बनाने में, ठीक है, इसलिए प्रतिकूल प्रतिक्रिया के डर से सरकार उन्हें पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। भाग 4 की गैर न्यायिक उपादेयता ने इस बात को बताया। जेनिंग्स उन्हें पवित्र आकांक्षाएं और समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद कहते हैं, जहां उन्हें सामान्यता के पैराग्राफ के रूप में चित्रित किया गया है। देखिए कई जो विद्वान हैं इन निर्देशक मूल्यों की, तत्वों की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। इसमें BN राव उन्हें एक शिक्षाप्रद मूल्य के साथ नैतिक उपदेश के रूप में मानते हैं। अम्बेडकर ने उन्हें राजनीतिक लोकतंत्र से आर्थिक लोकतंत्र में भारत के परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण माना है। ग्रीनविले ऑस्टिन के अनुसार निर्देशात्मक सिद्धांत सकारात्मक दायित्व है। ये भी कई बार आ जाता है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, जो सिविल सर्विस में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं, ये ऑफिसर दूसरे रैंक की जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस टाइप के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते रहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक भलाई के बीच एक सहेली तरीका खोजने के लिए
तो सकारात्मक दायित्व है, इस प्रकार की बात ग्रीनविले ऑस्टिन ने कही है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें जो हैं जो हमने आज के सेशन में पढ़ी हैं वो नीतिशक तत्व जो हैं उसके प्रकारों को लेकर है कि भी कितने प्रकार के हैं। और देखिए जो अलग अलग थिंकर हैं, अलग अलग राइटर हैं, अलग अलग बुक्स हैं, उनमें इसको अलग अलग अपने अपने तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ज़रूरी नहीं ये 3 ही पॉइंटों के बिहाफ पर समझाए, कोई इसको 5 पॉइंट बना देता है, कोई 6 पॉइंट बना देता है, कोई 4 बना देता है। ओवरऑल बातें वही होती हैं, घुमा फिरा के कैसे भी अपने शब्दों में वो बता देते हैं। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस वीडियो में तो 3 ही पॉइंट बताए हैं और दूसरी इस राइटर की जो बुक है उसमें 5 या 6 बताए हैं। ठीक है, तो हर कोई अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करता है, बात एक ही है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें कॉमन होती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। ये जो सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के 2.0 डिजिटल वर्जन के द्वारा तैयार किया गया है और आप यूँ ही आगे से आगे वीडियो को देखते रहें जिससे आपका जो कैरिकुलम का जो पोर्शन है, जो सेशन है वो कंप्लीट होते रहे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।